दोस्तों नमस्कार. Today we are going to see one of the important videos. In this video we are going to see the questions which were asked in जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट. जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, इसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं. तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन. Sum of the two numbers is 3,45,678. One number is 16,016 greater than the other number. What is the greatest number? दोनों संख्याओं का योग 3,45,678 है. यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16,016 बड़ी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? So let us consider students here. First number is x. What is given condition here? Second number is greater than first number by 16,016. So this will be first number and this will be second number. So sum of these two numbers is given. So x plus 16016 is equal to, this is the addition, so 3,45,678. So I can write here 2x, x plus x, 2x is equal to 3,45,678. ये जो नंबर है इसको हम लोग इस साइड में लेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा. 61016 है तो इसका हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. यहाँ पे 2 आएगा, 6 यहाँ पे 9, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा. तो 2x इज इक्वल टू ये आ गया नंबर. ओके, तो x इज इक्वल टू 3,29,662 आएगा. तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करने के बाद 2 1 यार 2 1 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 1. So this is the value of your x here. तो देखिए बच्चों, यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि ये जो नंबर है यहां पर आंसर दिख रहा है, लेकिन ये दो नंबर को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये बड़ा नंबर है. तो यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है. So therefore our answer will be, which number is divisible by 18? So this is the value of x, 164,831 और इसमें ये ऐड करना पड़ेगा. So it will be 16016. The answer will be 74808 1. So here this will be our answer. तो यहां पर एक ट्रिक हमको यूज करना है. नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, दैट मीन्स 18 कैन बी रिटन एज 2 into 9. तो हमें एक नंबर ऐसा देखना है जो 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है. अब 2 से डिविजिबल नंबर ये 3 है, लेकिन 9 से डिविजिबल अगर कोई नंबर है, ए नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स is divisible by 9, then that number will be divisible by 9. So let us see here. First here, if I divide it by 2, then this here 4 4 4 4 4. So divided by 2. First I am dividing by 2. It will be here 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 2. लेकिन ये सभी डिजिट्स को अगर हम ऐड करते हैं 2 plus 2 4 6 8 10 and 12. This 12 is not divisible by 9. That implies this number is, though it is divisible by 2, but it is not divisible by 9. तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 18 से डिविजिबल नहीं. लेकिन हम लोग इस नंबर के बारे में देखेंगे. 6 6 6 6 और ये 6 है. If I divide it by 2, so 2 1s are 2 3s 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 are. With 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12 plus 3 15 plus 18. तो ये आ गया 18. That means
This number is divisible by now 9 also. So a number which is divisible by 2 and 9, that will be divisible by 18. So our answer will be D. So let us understand first question. 128 boxes are packed with 36 toffees in each box. If 4 toffees are placed less in a box, new number of boxes which can be filled with the same number of toffees is. तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले देखेंगे हम लोग. 128 बक्से, प्रत्येक बक्से में 36 टॉफियां से भरे हुए हैं. यदि एक डिब्बे में 4 टॉफी कम रखी जाती है तो समान संख्या में टॉफी से भरे जा सकने वाले बक्सों की नई संख्या क्या है. यहां पर हम लोग पहले टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इन 128 बॉक्सेस, total number of toffees in 128 boxes. So therefore this will be 128 into 36 boxes. There are 128 boxes and in each box there are 36 toffees. So therefore total number of toffees will be multiplication of 120 and 36. So if we multiply 128 by 36, then we will get 4608. What is if 4 toffees are placed less in each box? That means 36 minus 4 is equal to 32 toffees will be in each box. तो हमारे पास total number of toffees are 4608. That means so total number of boxes, अगर ये हमको boxes निकालना है, इस नंबर को हम लोग अगर 332 से डिवाइड करते हैं तो we will get total number of boxes. 128 into 36, that means 4608 upon 32. So 4 8s are 32, 4 9s are 36, 8 1s are. So this is equal to 16 into 9, that is equal to 144. तो ये 144 आंसर हो जाएगा. So let us see one more important question. What is the length of the longest tape which can be used to measure exactly 1 meter 75 centimeter, 4 meter 50 centimeter and 6 meter and 50 centimeter. इसमें पहले हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे. सबसे लंबे टेप की लंबाई क्या है जिसका उपयोग बिल्कुल 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर मापने के लिए किया जा सकता है. यहां पर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज्ड टू मेजर exactly 1 meter 75 centimeter, 4 meter 50 centimeter and 6 meter and 50 centimeter. तो यहाँ पर अलग अलग 3 लेंस दिए हैं. तो उसके लिए सबसे लंबा जो टेप है कौन सा यूज करना चाहिए. यहाँ पर हमें जो 3 लेंस दिए हैं, अगर हमें सबसे लॉन्गेस्ट ऐसा कहा है तो इसका की पॉइंट है ये तीनों नंबर का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकालना है. हियर 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दिस इज 175 सेंटीमीटर. 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर मीन्स व्हाट 400 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर. तो दोनों का एडिशन करेंगे 450 सेंटीमीटर. इसके बाद में 6 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 650 सेंटीमीटर. यहां पर हम लोगों को HCF निकालना है. अगर हमें HCF निकालना है तो उसके लिए हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. तो यूनिट प्लेस से 5 हो तो इट इज डिविजिबल बाय 5. तो 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 3s are 15. यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा और 2 के ऊपर 5 लेंगे तो 25. तो 5 7s are 35, 7 1s are 7.
उसके बाद में 450 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। या 0 है यूनिट प्लेस पे तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा। देखिए बच्चे 2 2 जा 4 या 5 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर रहेगा। 2 2 जा 4, 1 रहेगा, 1 इसके आगे लेंगे 10, तो 2 5 जा 10। अगेन हियर एडिशन ऑफ दीज 3 डिजिट्स, ये 9 आ रहा है, इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाय 3 है। तो 3 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 7 प्लस 5 12 आता है, 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 5, 5 5 जा 15, ये 5 बन जाएगा। इसके बाद में लेट अस सी 650 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा। तो इट इज डिविजिबल बाय 5, 5 6 जा 5 5 जा। इसके बाद में लेट अस डिवाइड 5 1 जा 5 3 जा, तो 13 1 जा। तो ये आ गए इसके फैक्टर। तो 175 के फैक्टर्स आएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद में 450 के फैक्टर्स देखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। 650 के फैक्टर्स हम लोग देखेंगे तो ये आएंगे 5 इंटू 5 इंटू ये 5 इंटू 5, 2 इंटू 13। सो वी हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन these three numbers, that is 5 into 5. 5 into 5 is common, so it is 25. Our answer will be 25. What is key point? अगर हमें 3 लेंस दिए हैं और उसमें लॉन्गेस्ट टेप का यूज करना है, दैट मीन्स ये तीनों नंबर्स को वो कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। तो इसका ये ट्रिक ये है कि तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, जो एचसीएफ आएगा वो आंसर आएगा। एचसीएफ निकालने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो 3 नंबर्स दिए हैं एक ही यूनिट में उनको कन्वर्ट करना है। जैसे 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, उसको 175 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर, 650 सेंटीमीटर, तो सभी का यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। So let us see next question. The product of SCF and LCM of two numbers is 384. If one of them is 24, then other number is. So the product of SCF and LCM of two numbers. तो इसका प्रोडक्ट दिया है, या यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिंदी में दो संख्याओं का SCF और LCM का गुणनफल 384 है। यदि उनमें से एक 24 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? यहां पर देखिए आपको की पॉइंट जो ध्यान में रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहां पर हमें दिया है, देखिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 384। तो ये हो गया 384। देन यहां पर वन ऑफ देम इज, अब ये दो नंबर्स है, उसमें से एक 24 है तो दूसरा नंबर निकालना है। तो देखिए 384.24 इज इक्वल टू बी करेंगे। तो ये 24 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में आएगा। तो लेट इज डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 9, 2 9 जा 2 2 जा 4। उसके बाद में 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। तो लेट अस डिवाइड बाय इट बाय 6। तो 6 1 जा, तो इसमें से 3 बचेंगे 36। तो 6 6 जा 36। Our answer will be 16. So let us see one more important thing, important example here. So what is given here? 48.480 is divided by 8. What will be the quotient? जब 48.480 को 8 से विभाजित किया जाता है तो भागफल प्राप्त क्या होगा? तो लेट अस डिवाइड हियर। तो 48.480
48.48 डिवाइडेड बाय, हमें डिवाइड इसको 8 से करना है। 8 वन जा 8, 8 6 जा 48, यहां दशमलव जैसे कि वैसा। देखिए बच्चों, यहां पर ये मिस्टेक नहीं करना है। अगर हम 8 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, पहला नंबर जो है वो 4 है, तो 4 इज लेस देन 8। अगर ऐसा है तो यहाँ पे 0 लेना है। 0 लेने के बाद में उसके ऊपर दूसरा अंक लेना है। तो नाउ वी कैन डिवाइड 48 बाय 8। सो 8 6 48 0, that means 6.060. so this will be our answer. So let us see one more important example here. So what is given here? 4137 upon 1.75 is equal to 2364 ऐसा दिया है। यदि 4137 को 1.75 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो डिवीजन आएगा 2364। ओके, अगर हम 41.37 को 175 17.5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो सो व्हाट विल बी द आंसर। देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे। 4137 अपॉन 1.75, यहां पर ये डिजिट सेम है, न्यूमरेटर में डिजिट सेम है, डिनोमिनेटर में डिजिट सेम है, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट्स है। देखिए यहाँ पर 41 और या 37 है, यहाँ पॉइंट है, इसका मतलब है यहाँ पर 41 पॉइंट आने के लिए डिवीजन में 100 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में ये 1.7 है या 1.75 है, 17 पॉइंट है। ये डिजिट अगर इधर लेना है तो या डिनोमिनेटर में और एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हम लोग डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी 100 इंटू 10 से ये करना पड़ेगा। जैसे भी मैं 10 का ये 0 निकाल देता हूं तो ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे आएगा, और ये 2 0 जब मैं हटा देता हूं ऊपर 41 के बाद में यहाँ पॉइंट आएगा। तो आंसर हमारा क्या है? देखिए 2364 अपॉन 1000, एक के ऊपर 3 0, यहां से 3 डिजिट काउंट करना है, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि 41.37 अपॉन 17.5 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, our answer will be 2.364. So this will be our answer. So let us see next question. The decimal equivalent to 1 upon 10 plus 11 upon 100 plus 111 upon 1000. तो दशमलव एक 1 by 10 plus 11 upon 100 plus 111 upon 1000, इनको अगर ऐड करते हैं तो what will be the addition? ऐसा क्वेश्चन। Here 1 upon 10 means I can write 0.1 plus 11.100 means 0.11। देखिए 2 0 है तो ये यहां से डिजिट्स को लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना, 1 2 इधर डेसिमल पॉइंट आए, प्लस अब इसको ये 3 0 को हटाएंगे, 1 2 3 इधर डेसिमल पॉइंट आएगा 0.11। तो ये तीनों को ऐड करना है 0.1, ये 3 डिजिट्स है, तो आई कैन टेक हियर वन मोर 0 प्लस 0.110 प्लस 0.111। अब इसका वी कैन ऐड 1 plus 0 plus 0 means 1, 1 plus 1 2 plus 0 2, 1 plus 1 2 plus 1 3। तो ये आ जाएगा। So our answer will be 0.321. So let us understand next question. Question number 9 here. Rahul purchased old TV for rupees 3000. He spends rupees 300 on its repair. He sold TV for rupees 3,500. What is his profit? तो राहुल ने 3000 रुपए में एक पुराना टीवी खरीदा। वह इसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्च करता है। उसने टीवी 3500 में रुपए में बेचा, तो उसका लाभ क्या है? तो पहले हम लोग देखेंगे कि टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, देखिए 3000 रुपए में खरीद किया है और उसके ऊपर उसने क्या किया,
रिपेयरिंग का 300 रुपया खर्चा किया है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3,300 विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। अब सेलिंग प्राइस उसने कितने रुपए में बेचा है? 3,500। तो यहां पर सेलिंग प्राइस की 3,500 है और कॉस्ट प्राइस 3,300 है। हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 3,500 माइनस 3,100, तो आवर आंसर विल बी 200। तो ये हमारा ये 200 आंसर हो जाएगा। So let us see one more important question here. Amar borrowed 800 at a rate of interest of 5% per annum. The amount he will pay after 3.5 years is, तो अमर ने जो यहाँ पे अमर ने 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 800 रुपए उधार लिए हैं और 3.5 वर्ष के बाद वह कितनी राशि का भुगतान करेगा। पहले हम लोग देखेंगे कि जो उधार लिया जाता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट है, तो P इज इक्वल टू 800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है और जो समय है वो n इज इक्वल टू 3 इंटीजर 1/2। तो 3 इंटीजर 1/2 इसका मतलब होता है 2 इंटू 3 6 प्लस 1, तो ये 7/2 कितने वर्ष के लिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि ब्याज कितना लगता है, ये सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR अपॉन 100 है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू P का मतलब 800 है, N का मतलब 7/2 है और रेट 5 है अपॉन 100। तो ये 100 के 2 जीरो में इसके साथ कैंसिल कर सकता हूं, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 140 आएगा। तो जो वो सिंपल इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है वो 140 रुपए, उसने लिए थे 800 रुपए, तो 3.5 वर्ष के बाद में उसको 800 रुपए और उसका ब्याज, तो 800 plus 140, that means 940 will be our answer. So let us see one more important question here. Observe the following pattern of triangles made of matchsticks. Number of triangles, number of matches here, matchsticks here. अगर एक ट्रायंगल बनाना है तो उसके लिए ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है तो उसको 3 स्टिक्स लग रहे हैं। अगर 2 ट्रायंगल बनाना है तो ये 4 और 1 5, 2 ट्रायंगल बनाएंगे तो 5, 3 अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो उसके लिए 7 मैचस्टिक्स है, और ये 4 अगर आप ट्रायंगल्स बनाते हैं ऐसे तो उसके लिए 9 स्टिक्स। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मैचस्टिक्स डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 ट्रायंगल्स। अगर 10 ऐसे ही ट्रायंगल्स बनाना है तो उसके लिए कितने मैचस्टिक्स लगेंगे। तो आपके अनुसार 10 त्रिभुज बनाने के लिए कितनी माचिस की तिलिया की आवश्यकता होगी। तो देखिए बच्चों, यहां पर 2n+1 ये फार्मूला ध्यान में रखें। 2n+1 का मतलब है n इज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अगर समझो हमें एक ट्रायंगल बनाना है, जैसे 2 इंटू 1+1, तो 2 + 1 3 आएगा। जैसे यहाँ 2 ट्रायंगल्स बनाना है तो n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, तो ये आंसर आ रहा है। तो ये पैटर्न हमें ध्यान में रखना है, 2n+1। हमें वी हैव टू मेक 10 ट्रायंगल्स। 10 ट्रायंगल्स के लिए 2 इंटू 10 + 1, दैट इज 21 मैचस्टिक्स लगेंगे। तो दिस विल बी आवर आंसर। So let us see one more important question here. The sum of the digits of a number is subtract from the number. तो देखिए बच्चों, नंबर 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है कि एक्स वाई, जैसे y इज यूनिट प्लेस डिजिट और x इज 10 प्लेस डिजिट। तो नंबर कोई भी 2 डिजिट अगर हमें ऑब्टेन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 25 है, तो ऐसा नहीं है, 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट लेना है।
तो देखिए यहाँ पे 20 प्लस 5, तो ये 25 आ जाए। ऐसे ही यहाँ पर अगर नंबर, वो नंबर जो हो जाएगा 10 into tens place digit plus unit place digit. What is condition here? The sum of the digits of a number is subtracted from the number. तो ये 10x plus y ये हो गया 2 डिजिट नंबर, उसमें से हमें सम ऑफ 2 डिजिट्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस इज इक्वल टू 10x plus y माइनस x माइनस y। तो ये नंबर आएगा 10x minus x, it is will be 9x, or plus or minus y will get cancelled. So what is our question here? The sum of the digits of a number is subtracted from the number. The resulting number is always divisible by. जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा। किसी संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या हमेशा से विभाज्य होती है। तो देखिए बच्चों, जो नंबर आ रहा है तो इट इज मल्टीपल ऑफ 9, इट इज मल्टीपल ऑफ 9, so therefore we can say that this number will be always divisible by 9. So 9 will be our answer.